Yes, our next topic is adverb. What is adverb? Adverbs are words that mostly go with verbs. Adverbs are verbs that mostly go with verbs. They tell us how, when, where, how often action take place. एडवर्ब्स वो होते हैं जो मोस्टली वर्ब के साथ चलते हैं. वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एक्शन टेक प्लेस हुआ है उसके बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल्स: शी टॉक्स लाउडली. शी टॉक्स is a simple sentence. If I say she talks loudly, it means loudly verb के साथ जा रहा है, इसलिए verb को modify कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? Adverb करेंगे. He came yesterday. He came is a simple sentence. यहाँ पर came के साथ adverb yesterday मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. समटाइम्स एडवर्ब ऑल्सो गो विथ एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब. कितनी बार एडवर्ब्स जो हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी रन करते हैं. जैसे शी इज वेरी केयरफुल इन her work. Careful, very careful. This is called adverb. I could not understand him clearly. Quite clearly. Quite clearly is adverb. Thus, an adverb is a verb that modifies the meaning of a verb or an adjective or an एडवर्ब. इसलिए जो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडवर्ब्स कहेंगे. एडवर्ब्स मेनली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब. दीज आर 3 kinds of adverb. Now I explain what is simple adverb, what is interrogative and what is relative adverb. First simple adverbs. First kind of simple adverb is adverb of manner. These adverbs show how actions are done. How actions are done means किस तरह action को complete किया जा रहा है. They finished their lunch quickly. They finished their lunch. But how they finished their lunch? They finished their lunch quickly. Quickly is adverb here. The children watched the film silently. The children watched the film. How the children watched the film? Silently. So silently is adverb of manner. There are many words like quickly, silently, slowly, punctually, regularly, soundly, politely are some other words of adverbs of manner. Second point is adverb of time. टाइम मीन्स समझ में आ गया टाइम वर्ड आते ही. दिस एडवर्ब शोज व्हेन द एक्शन टेक प्लेस. व्हेन एक्शन टेक प्लेस, कब, किस समय हुआ. फर्स्ट, दे कम्स टू स्कूल डेली बाय बस. हाउ दे कम टू स्कूल? बाय बस. बट व्हेन? डेली, रोजाना. Second is she is absent today. When she is absent today. आंसर हमें जब when से क्वेश्चन करेंगे
तो हमें आंसर मिलेगा एंड दैट आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. राइट डाउन दिस. Let's go on third kind, adverb of place. Adverb of place is this adverb shows where the action take place. Where, कहाँ पर. She went, where, out is adverb. They went, where, down, down is adverb. We searched, where, everywhere. So these three, place, down, out and everywhere, are called adverb of place. Then there are many words also like here, there, in, out, up, away. Fourth is adverb of frequency. This frequency is a word from your science book, frequency. These adverbs tell us how often. How often means कितनी बार action take place. How many time action take place in sentence. She climbed the hill. How often? How many times? Twice. दो बार. We eat fish. How many times you eat fish in a week? Seldom. कभी कभी. Sometimes, often, again, once, usually are the words that mostly used with adverbs of frequency. Then adverb of degree. What is adverb of degree? These adverbs show to what extent a thing is done. कैसे की जा रही है. ठीक है. She talks. But how she talks? She talks very loudly. What extent? This is called extent. It is hot. Simple sentence. But I say it is too hot. Is called adverb of degree. He is quite rich. He is rich is simple sentence. He is quite rich is called adverb of degree. Then adverb of reason. Adverb of reason is very simple. जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई रीजन बताने वाला वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ रीजन. वर्ड्स लाइक hence, therefore are called adverb of reason. They did not like school. They did not like school. Therefore he left. Therefore he left. इसलिए reason. What is reason? Did not like school. So we use therefore. Therefore is reason. So reason. Adverb of reason. Next 7 is negation and affirmation. Negation and affirmation. What is negation and affirmation? Negation means नेगेटिव में आंसर देना एंड affirmation means affirmative यस में आंसर देना. जब किसी सेंटेंस के अंदर हम यस या नो में कोई आंसर आता है या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो नेगेशन एंड affirmation एडवर्ब्स कहलाते हैं. कैसे कहलाते हैं नेगेशन एंड affirmation? वर्ड्स लाइक नो, नॉट, परहैप्स, yes, certainly, are called negation and affirmation adverbs.
he will certainly pass the examination. Right? Next is, I don't like this book. First sentence, he certainly passed the examination is affirmative sentence. यहाँ पे हमें hope दिखाई दे रही है ना. Certainly, perfectly, यानी कि affirmation. I don't like this book. मुझे ये book पसंद नहीं है. पसंद नहीं है, नहीं word आया, it means it is called negation. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट सिंपल एडवर्ब्स के काइंड. नेक्स्ट है हमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स पढ़ने हैं. व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स? द वर्ड्स which start with WH word and H word is called interrogative adverbs. They mostly used in the beginning of the sentence and ends with question mark symbol. Symbol. They begin with WH or H word and ends with question making symbol. That is called interrogative adverbs. वो क्या बताते हैं? अभी हमने जितने भी सिंपल एडवर्ब्स के काइंड्स पढ़े, उन काइंड्स को एक्सप्रेस करते हैं. कौन कौन से काइंड पढ़े हमने? काइंड पढ़ा हमने टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन एंड नंबर. ठीक, 1 2 3 4 5 ये चीजें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड पढ़ी. इसी को जब वर्ड रिप्रेजेंट करेगा, दैट वर्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. फर्स्ट, हाउ डिड यू सॉल्व? हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम? When did she come to Mumbai last? When did she come to Mumbai last? Third, were you born? Were you born? Fourth, why have you come late? Why have you come late? Fifth, how many times have you visited? Have you visited the Taj? Look at here. Every 5 sentences, each and every sentence describe each and every part of adverb. How? First, how did you solve this sum? How is called interrogative adverb, and which if we change this sentence into simple sentence, then it is comes in a manner. कि तुम किस तरह इस सेंटेंस को, इस
सम को सॉल्व करते हो, दैट इज योर मैनर, कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो। विथ व्हेन डिड शी कम टू मुंबई लास्ट, व्हेन कब, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम। आपको समझना है, अब मैंने तो सारे समझा दिए। तो दिस व्हेन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन टाइम में आएगा। वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पर, आपका जन्म कहाँ हुआ, प्लेस, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वेयर इज कॉल्ड एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाई हैव यू कम लेट, दिस इज रीजन। तो व्हाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन को, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड ताज, हाउ ऑफन, हाउ मैनी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पर हो गया नंबर, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये आपका सेकंड पॉइंट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी यहाँ पर फिनिश हुआ। थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब्स। अभी हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, कि जो भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मेकिंग सिंबल। किसका सिंबल यूज होता है, क्वेश्चन मेकिंग सिंबल का यूज होता है, और वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। यही इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जब दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करेंगे, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सेंटेंस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब मिडिल ऑफ द सेंटेंस में यूज होगा और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा, वो मोस्टली सेंटेंस रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, आई डोंट नो द प्लेस, where, I don't know the place where the money is. I don't know the place is the first sentence, the money is second sentence. हमने किससे इसे ज्वाइन किया, where से ज्वाइन किया, तो ये where क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। इन दोनों की रिलेशनशिप को बता रहा है, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डू यू नो द टाइम, when the train comes। अब यहां पर देखो, सेंटेंस रिलेटिव एडवर्ब का है, लेकिन बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। जब बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो क्वेश्चन के अंत में, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मेकिंग सिंबल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के लिए। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। ये जो व्हेन है उसकी वजह से ये क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से यूज हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हमने ये यूज किया है। तो हमारा आंसर तो क्या है, हमें रिलेटिव एडवर्ब फाइंड आउट करना है। तो हमें रिलेटिव एडवर्ब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों की रिलेशनशिप को बता रहा है, तो हमें क्या करना है, व्हेन का यूज करना है।
Here your chapter is completed. अब आपको worksheet, I will send you worksheet, complete it and send me your homework on my personal number.